وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امت کی مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بغیر مانگے، بغیر طلب کے، بغیر طلب کے اور بغیر عرضی کے، بغیر درخواست کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کرم فرمایا کہ ہم تمام کو آقائے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ قرآن میں مطالبہ ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العزت یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے دنیا میں بسنے والوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، یوں ہی زندگی کے گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو آگے خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مرضی، اپنے خواہشات اور اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تم کو جو بھیجا ہے وہ اللہ کی مان کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی کے گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم کس مقصد کے تحت دنیا میں آئے ہیں؟ ہماری جگہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنا کر کے کیوں دنیا میں بھیجا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اگر ہم سوچیں تو قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کے پیدا ہونے کا مقصد اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد اور ان کے زمین پر رہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک اللہ کی ماننے والے بن جائیں، ان کا یقین اللہ کی ذات پر 100% یقین آ جائے کہ عزت کے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہاں لیعبدون سے مطلب لیعرفون ہے کہ تم اللہ کو پہچانو کہ زندگی کے دینے والے کون ہیں، موت کے دینے والے کون ہیں۔ یخرج الحی من المیت، اتنا بڑا آسمان، وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت، کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، آسمان تمہیں دکھائے گا کہ یہ آسمان صرف اللہ کے قدرت کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اللہ کے حکم سے یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وإلى الأرض كيف سطحت، زمین میں غور کرو کہ اتنی بڑی زمین کس نے بچھائی ہے، تمہیں اللہ نظر آئے گا، زمین بتائے گی کہ ہم کو بچھانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے، ہم کو بچھانے والا تو صرف اللہ ہے۔ وإلى الجبال كيف نصبت، یہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح کس نے رکھ دیا ہے، کس نے گاڑ دیا ہے؟ اگر میں اور آپ غور کریں تو قرآن کہے گا کہ اس کے رکھنے والا، اس کو گاڑنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا رب اللہ ہے۔ اور پھر آگے چل کر کے اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، کہ پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہی اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے جو عزتوں کے مالک ہے، وہ تعز من تشاء، وہی اللہ ہے جو ذلتوں کے مالک ہے، وہ تذل من تشاء، وہی اللہ ہے جن کے ہاتھ میں ساری دنیا کا اور آسمان کے اوپر کا سارا سسٹم، سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی اللہ ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردوں کو زندوں سے نکالنے والا، زندوں کو مردوں سے نکالنے والا وہی تمہارا اللہ ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ارے راتوں کو دن میں داخل کرنے والا کون ہے؟ تو غور کرو تو یہ قرآن بتائے گا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارا رب ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ہاں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج کا نکلنا اور یہ سورج کا چمکنا اور یہ سورج کا روشنی دینا اور یہ چاند کا نکلنا، یہ ستاروں کا نکلنا، یہ تمام کے تمام چیزوں کا نکلنا تمہیں اللہ کے ہونے کو بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اللہ ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس آیت سے اور ہماری زندگی کے مقصد اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری دل کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کا 100% یقین پیدا ہو جائے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مارنے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ اللہ تو ایسے ہے کہ موت کے نقشے میں رکھ کر کے زندگی دے کر کے دکھاتے ہیں، وہ اللہ ایسے ہے جو زندگی کے نقشے میں رکھ کر کے موت کو دے کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے آنے کا، ہمارے جڑنے کا، ہماری تعلیمات کا اور ہمارے 3 دن اور عشرے اور چلے اور 2 مہینے نکلنے کا، 4 مہینے اور سال نکلنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین پر کہ بہت ساری صفات تھی، ان تمام صفاتوں میں سے 6 صفاتوں کو منتخب فرمایا۔ تقوی بھی ایک صفت،
सब्र भी एक सिफत है, शुक्र भी एक सिफत है, लेकिन 6 सिफतों को लाकर के उम्मत के सामने पेश कर दिया है और हदीस के निचोड़ को लाकर के मेरे और आपके सामने पेश कर दिया है, बड़ा आसान बना करके पेश कर दिया है। और इन 6 सिफतों में सबसे पहली सिफत ईमान को लाकर के रख दिया है। कभी आपने गौर किया कि ईमान वालों को ईमान की सिफत क्यों बनाना पड़ा, ईमान वालों को ईमान की सिफत क्यों बयान करना पड़ रहा है? वजह उसकी यही है, अकाबीर फरमाते हैं, इसलिए कि ईमान वालों को ईमान बनाने की जरूरत है। ईमान मिल तो गया लेकिन इसके बनाने की जरूरत है। ईमान मिल जाना तो बड़ी आसान बात है, आप उसको संभाल करके रख लेना, उसके मुताबिक जिंदगी को गुजार लेना बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 6 सिफातों में से पहली सिफत ईमान को लाया है कि जब तुम 3 दिन के अल्लाह के रास्ते में जाओगे, अशर और चिल्ले में जाओगे, दीनी हक़ों में बैठोगे, बार बार ईमान के तज़किर होंगे और इसी ईमान के मुताबिक अल्लाह के नबी के वाक़यात को सुनोगे, सहाबा के वाक़यात को सुनेंगे कि इनका ईमान कैसा था, नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे मेहनत की थी। हज़रात सहाबा ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, बल्कि 13 साल ईमान के बनाने की मेहनत की थी। रब्बे काबा की कसम, उनका ईमान ऐसा बना था जिसके बुनियाद पर उनसे नमाज़ें पढ़ा नहीं हुआ करती थी। उनका ईमान ऐसा था कि दोनों रकातों में वो रात भर गुजार किया करते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था, उनका ईमान ऐसा बना हुआ था कि एक आयत पढ़ते थे, वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, पूरी रात पर निकल जाया करते थे। उनका ईमान ऐसा बना हुआ था कि कभी इनकी तकबीर उन्हें खौफ नहीं हुआ करती थी। उनका ईमान ऐसा बन गया था कि इल्म की तहकीक के जज्बे उनके अंदर पैदा हो गए थे। कुछ अमल करना होता, नबी से मुतवज्जह होते, नबी की तरफ मुखातिब होते, या रसूल अल्लाह ये जो अमल है क्या इसको करना दुरुस्त है या नहीं है। जब ईमान उनका बना हुआ था, जिक्र करना उनके लिए आसान था। ईमान उनका बना हुआ था, बड़ों का इकराम करना, छोटों का अदब और एहतराम और उनके साथ शफ़क़त का मामला करना, अपने बड़ों के साथ में कभी कोई कमी कोताही हो जाए तो माफ कर देना, दर और गुज़र का मामला कर देना। इसलिए कि सहाबा का ईमान बना था, उनका दिल बन चुका था, उनके अंदर का बन चुका था, जिसकी बुनियाद पर उनके लिए नमाज का पढ़ना आसान हो गया था। आज उम्मत की माओ बहनों का, आज उम्मत के मर्दों का यह हाल है कि ईमान बना हुआ नहीं है। इसलिए अदाने कानों में तो आती है लेकिन काम को छोड़ा नहीं जाता, अदाने कान में तो आती है लेकिन खाने को नहीं छोड़ा जाता, अदाने कान में तो आती है लेकिन शादी ब्याह को नहीं छोड़ा जाता। बाद में पढ़ेंगे आए हमारा ईमान बड़ा कमजोर है, हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबिरीन ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हमारे बड़े मौजूद है अल्लाह उनके उम्रों में बरकत अता फरमाए। ये मेहनत उम्मत के अंदर चलाई है ताकि उम्मत का तबका जहन्नम से बच जाए, ताकि उम्मत का तबका अल्लाह की पकड़ से बच जाए, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इसलिए कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त। और उम्मत की माएं बहनें, ये जो आज में आप बैठे हुए हैं एक मकान में जमा होकर के, हैदराबाद से अल्लाह के रास्ते में निकल करके आप शादनगर आए हैं हिजरत करके, ये जो आए हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं तब जाकर के हम जमा हुए हैं। हमारे बड़ों ने बड़े आंसू बहे हैं और बड़े रोए हैं, बड़ी इबादतें की है, बुराओं से अपनों को बचाया है और उम्मत को कबूल करवाया है, तब जाकर के ये मजमा नजर आ रहा है। वरना किसी के पास में वक्त नहीं है अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, दूसरे काम करने के लिए सबके पास में वक्त है। रब्बे काबा की कसम, ये हमारे बड़ी कुर्बानियों का नतीजा है जो मैं आप यहाँ बैठे हुए। 1 साल और 2 साल की मेहनतें नहीं है, ये 10 साल और 20 साल और 50 साल की मेहनतें नहीं है, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक की मेहनतें हैं, जिसका सिला आज हम देख रहे हैं। हमारे हजरत जी तो कहते हैं कि इस्तकबाल का जमाना है। अरे तुमने तो वो जमाना क्या देखा कि जिस वक्त यहाँ फातेह पर फातेह हुआ। निजामुद्दीन का एक वाक़या है, बाहर सुनाता हूँ, हाफिज सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि हमारे लिए 6-6, 7-7 दिन फातेह करना तो बड़ा आसान था, यूं गुजरता है, खाने के लिए कुछ नहीं हुआ। एक मौका ऐसा हुआ, 8वां दिन था, कुछ खाना आया, दस्तरखान पे बिछाए और मेहमान आ गए मरकज से। हजरत जी ने आवाज दी, दस्तरखान पे बिछा हुआ खाना था, हम ऐसे के वैसे भूखे उड़ गए और उन मेहमानों को खिलाया। ऐसे मेरे 16-15 दिन गुजर गए। मुझे इत्तला मिली कि बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लिहाजा उसको डॉक्टर को दिखाया जाए। हाफिज सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत जी से इजाजत दी, आपने इजाजत नहीं दी, आप वहीं रहे। 2 दिन के बाद में इत्तला मिली कि जिस बेटी के मुताबिक खबर पहुंची थी कि मिजाज खराब है, अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। हाफिज सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पहुंचे और घर पहुंच के देखा कि जनाना पड़ा हुआ है, आपकी आंखों से आंसू जारी है, लेकिन हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं है, जबान तपतपा रही है, और दूर दराज की रिश्तेदार उनकी खाला जान आ रही थी, उनके हाथों में खाने का टिफिन था। दूर से जैसे ही उनकी निगाह हाफिज सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस टिफिन पर पड़ी है, वो बेटी के जनाजे को छोड़ करके उनके पीछे दौड़े और दौड़ते हुए उस टिफिन को हाथ में से छुड़ाया और वही खाने को बैठ गए। दूर की खाला जान कहती है, कितना कमबख्त बाप है, कितना जालिम बाप है, अरे ये तो कितना दुश्मन है, इसको बेटी का जनाजा भी नहीं दिखता है, बेटी के जनाजे में तो लोग रोते हैं, खाते नहीं है कई दिन तक के, और ये देखो रोटियां तोड़ रहा है और ये खाना खा रहा है। हाफिज सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह खाते जा रहे, सुनते जा रहे, आंखों से आंसू बहे जा रहे, जबान में भी ताकत बोलने की नहीं है। जब खाना खा लिया, खाला जान की तरफ मुखातिब हुए और खाला जान से कहा, अरे खाला जान तुम मुझे रान तान करती हो, तुम्हें पता नहीं है मैं किस गली से गुजर रहा हूँ, यहाँ तो मेरी बेटी का जनाजा रखा हुआ है, अगर आज मुझे ये खाना नसीब न होता तो मेरी बेटी के जनाजे के बाजू में आज उसके बाप का जनाजा रखा हुआ होता और दोनों का जनाजा घर से उठा, इसलिए कि 18 दिन हो चुके हैं निजामुद्दीन में खाना नहीं नसीब हुआ, 18 दिन गुजर चुके हैं। ये थे हमारे अकाबिरीन के हालात।
जिसकी बुनियाद पर आज ये हद तक के पहुंचा है। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं कि कितनी आपने तकालीफों का सामना किया है, कितने मुजाहिदों को बर्दाश्त किया है। आपका एक वाक़या लिखा हुआ है तो सहाबा में इब्तिदाई ज़माना था, लोग हज के मौसम में आ रहे थे और तिजारत के गर्ज से मक्का आए हुए थे, दूर दराज से काफिले बन कर आए हुए थे। आपको हुक्म दिया गया कि आप लोगों में चले फिरे और ईमान के होने को मिले, कुल्ल दावत दे। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मीना के बाजारों में जाते और आप काफिले वालों को दावत दी। एक काफिले वाले के पास में पहुंचे, उसको दावत दी और कहा कि ए लोगों, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों तुम कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ये वो कलमा है जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह इज्जत दिलाएगा। ये वो कलमा है जो हमेशा हमेशा के अज़ाब से तुम्हें बचाएगा। ये वो कलमा है जो तुम्हें जहन्नम से बचाएगा, जन्नत में दाखिल करेगा। तुम मेरी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है। तुम्हारा खालिक और मालिक एक ही है और जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो वो किसी काम आने वाले नहीं है, न अपनी जात के काम आने वाले हैं न तुम्हारे काम आने वाले हैं। लोगों मेरी बात को मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। पीछे से कहने वाला कहने लगा कि अरे लोगों ये तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, इसकी बातों में ना आना, इसलिए कि इसकी तो अपने भी नहीं सुनते, इसकी तो अपने भी नहीं मानते, इसके तो अपने भी करीब नहीं बैठाते, लिहाजा तुम इसकी बात को ना मानना। काफिले वालों को तो बात तो बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जिस वक्त उस शख्स ने इनकी मुखालिफत की, दावत की मुखालिफत की, मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की है, हम काफिले वालों ने मेरे नबी को वहां से भगाया। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पलटे, लेकिन आपको फिक्र थी, आपको तड़प थी, आपको बेचैनी थी इस बात की कि कोई तो होगा इतने सारे मजमे में जो मेरी बात को मानेगा। जैसे आज अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की फिक्र होती है। अपने घर तो ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे गांव में और ऐसी मस्जिदों में और ऐसे घरों में जा जाकर के कयाम करते हैं सिर्फ अल्लाह के नबी की सुन्नत को और उनकी मोहब्बत को सामने रख करके और दीन जिंदा हो जाए। प्यारा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों काफिले वालों ने भगाया, आपने फिर कोशिश की कि कोई तो होगा इस मजमे में। दूसरे के पास में जाते, वो शख्स पीछे पीछे आता और अभी कहते हैं वो शख्स अबू लहब था, वो शख्स आप बच्चे अबू लहब था कि आप दावत देते और ये आपकी मुखालिफत करता, फिर काफिले वाले आपको भगा देते, आपकी आंखों से आंसू जारी है, दिल में आप मायूस हुए, अरे कोई तो होगा। शाम का वक्त था, आप करीब पहुंचे मक्का के बाहर, अपने मुल्क जाने के लिए काफिला बैठा हुआ था किसी के इंतजार में। उसके पास में पहुंचे, उससे कहा कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी दावत पेश की कि या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। लोगों वही तुम्हारा मालिक और खालिक है जिसने तुमको भी अल्लाह का तुमको भी इंसान बना करके दुनिया में भेजा है और मुझे भी भेजा है। लोगों तुम बात को मान लो, हाँ तुम मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या करें, हमारा मालिक हमारा आका किसी कर्ज से कुछ लेने के लिए वहां गए हैं, वो आते हैं तो आप उनके ऊपर अपनी दावत को पेश कीजिएगा, जब वो कबूल कर ले हम भी मान लेंगे। प्यारे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां इंतजार में बैठे। थोड़ी देर के बाद में देखा कि वो शख्स आया और जैसे ही उस शख्स की निगाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी है, रब काबा की कसम वो कम वक्त कहने लगा कि ओ मेरे काफिले वालों, इस शख्स को यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी है? काफिले वालों ने कहा कि हमने इजाजत दी है। उस शख्स ने कहा कि अगर तुम इजाजत न देते तो नाउज़ बिल्लाह इसकी गर्दन को कलम कर देता, इसकी गर्दन को उड़ा देता। फिर उसने गुस्से में आकर के कहा कि सुन लो काफिले वालों, दुनिया में मेरी निगाह में सबसे बदतरीन अगर कोई शख्स नाउज़ बिल्लाह वो मोहम्मद की जात, वो मोहम्मद की जात। आपको वहां से भगाया, आप वहां से उठे और उठ करके अपने ऊंट के ऊपर सवार होने का इरादा किया। रिकाब में आपने पैर रखा, जैसे ही आपने रिकाब में पैर रखा, पैर रखते ही उस कम वक्त जालिम ने उसके हाथ में नेजा था, वो नेजा ऊँटनी को छुपाया, वो ऊँटनी भिनकी और मेरे और आपके प्यारे आका चारों खाने जिस जमीन के ऊपर गिर गए। आप जमीन पर गिरे और दुश्मनान इस्लाम मजाक उड़ा रहे हैं, इस्तेजा कर रहे हैं। आपने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए उठे और झाड़ते हुए जब कपड़ों को उठे हैं, आप जब कपड़ों को झाड़ते हुए उठे उसके बाद में ऊँट की नकील को पकड़े और पकड़कर आप आगे चलने लगे। जैसे कि आप आगे चलने लगे, काफिले वालों में से एक कम वक्त उठा और दौड़ता हुआ आया और ये कहता हुआ आया कि हमारे आका ने इस शख्स के साथ में ऐसा मामला किया है, हम क्यों न करें। दौड़ता हुआ मेरे और आपके प्यारे आका के सामने आया और आपके गिरबान को कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके आपके चेहरे अंगूर पर ठोका। दूसरा शख्स उठा, दौड़ता हुआ आया, पीछे से कपड़ों को फाड़ दिया। तीसरा शख्स दौड़ता हुआ यही कहता हुआ आया कि जब मेरे साथियों ने ये काम किया है तो हम क्यों न दे रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तीसरा शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने मिट्टी अपनी मुट्ठी में ली, हाथों में लेकर के प्यारे आका के चेहरे अंगूर पर मिट्टी को डाला। मेरे और आपके प्यारे आका के कपड़े को जैसे उसने खींचा है, मेरे और आपके प्यारे आका जमीन पर गिरे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है और आप जख्मी की हालत में पड़े हुए हैं और दुश्मनान इस्लाम मजाक कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, इस्तेहजा कर रहे हैं, तमस्कुर कर रहे हैं। आपकी छोटी लाडली बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला, एक सहाबी दौड़े हुए गए और कहा ज़ैनब तुम्हारे अब्बा जान को लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ज़ैनब ने एक पानी का कटोरा अपने हाथ में लिया और दौड़ते हुए मैदान में आई। जैसे ही मैदान में देखा कि अब्बा जान तो
बैठ करके रो रही है और रोते हुए अपने दुपट्टे को पानी में भिगोया और पानी में भिगो करके आप अलैहिस्सलाम की पेशानी को पोंछा, आपके चेहरे अंदर को पोंछा और रोते हुए मासूम हाथों से और मासूम जबान से अपने अब्बा से कह रही है कि अब्बा जान, आप कब तक की तकलीफों का सामना करोगे, आप कब तक की मुसीबतों का सामना करोगे, आप कब तक की परेशानियों को बर्दाश्त करोगे। अब्बा जान, आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, अब्बा जान आप इस दावत को क्यों नहीं छोड़ देते हैं। अब्बा जान, अगर इन तकलीफों का सामना करते करते आप भी दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी लाडली बेटी मासूम ज़ैनब ये भी यतीम हो जाएगी। पहले ही अम्मा जान का सर पे से हाथ हो चुका है, अम्मा जान दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आप ही है कि आप सर में तेल लगाते हैं, आप चोटी डालते हैं, आप हमारा ख्याल करते हैं। अब्बा जान, अगर आप दुनिया से रुखसत हो गए इनकी तकलीफों का सामना करते करते तो आपकी बेटी का क्या होगा, आपकी बेटी का क्या होगा। प्यारे आका की आंखों से आंसू नारी है, पेशानी को पोंछा, दाढ़ी मुबारक को पोंछा, पेशानी का बोसा लिया, कमर्दों की तरफ मुखातिब होकर के कहा, कमर्दों मेरे अब्बा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों मारते हो, कभी तो तुम बहुत सताते हो। आज तो तुमने हद कर दी है, एक ने मिट्टी को डाला, दूसरे ने पीछे से कपड़ों को फाड़ दिया, तीसरे ने सामने से फाड़ दिया और लोगों ने उनको जमीन पर गिरा दिया। क्या मेरे अब्बा ने तुमसे कोई सवाल किया है? अरे तुम्हें तो दीन की दावत दी है, तुम्हें तो हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाया है, तुम्हें तो कामयाबी के रास्ते की तरफ बुलाया है, तुम मेरे अब्बा को क्यों सताते हो। हाय अफसोस, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है, बेटी ज़ैनब भी रो रही है, अब्बा जान भी रो रही है, बेटी ज़ैनब जोर जोर से रो रो करके अब्बा जान के आंसुओं को पोंछ रही है और पेशानी का बोसा लेते हुए कह रही है कि अब्बा जान, अगर आप इन तकलीफों का सामना करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी बेटी ज़ैनब का क्या होगा। माँ का तो पहले ही इंतकाल हो चुका है और कोई भी रिश्तेदारों में पसंद नहीं करता, बैठाना पसंद नहीं करता, खिलाना पसंद नहीं करता। हाँ अब्बा जान, अगर आप भी रुखसत हो गए तो आपकी इन बेटियों का क्या होगा। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त तो उस हालात को जमीन ने भी देखा, आसमान ने भी देखा, फरिश्तों ने भी सुना, अल्लाह ने भी देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर चीज के देखने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, प्यारे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली अपनी प्यारी बेटी ज़ैनब को सीने से लगाया और सीने से लगा करके आंसू को पोंछा और कहा, बेटा तुम क्यों रोती है, बेटा तू क्यों परेशान होती है। जैसे कि किसी के बाप को मारा जाए, शराब पीता हो या कोई गुनाह हो गया हो, महल्ले वाले मारते हो तो बच्चे छोटे छोटे निकल कर आ जाते हैं, अरे भाईजान, अरे तुझे यार, अरे ताऊजान, अरे तुम हमारे अब्बा को ना मारो, अगर उन्होंने गलती की है तो अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। अगर ये मारते मारते तुम्हारे मारने की बुनियाद पर अगर ये अल्लाह को प्यारे हो गए तो हम सब यतीम हो जाएंगे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली को सीने से लगाया और सीने से लगा करके आंसू को पोंछा और कहा, बेटा तू क्यों रोती है, तू क्यों परेशान होती है। बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप जिस दिन को लेकर के आया है, जिस दावत को लेकर के आया है, इससे बहुत सारे मराहिल आने वाले हैं। बेटा ये तो एक झलक थी, और भी बहुत सारे मुसीबतों के बाहर मुझ पर तोड़े जाएंगे, मुझको तो पत्थर भी मारा जाएगा और मेरे कदमों को नीचे तो कांटे भी बिछाए जाएंगे और बेटा मेरे साथ में तो ना जाने कैसे कैसे सुलूक किया जाएगा। बेटा हाँ तू भी सब्र कर ले, तेरा बाप भी इत्तरानी के ऊपर सब्र कर लेगा, तेरे और मेरे सब्र करने की बुनियाद पर अल्लाह मेरी उम्मत के नाफरमानों को, अल्लाह मेरी उम्मत के बागी और जालिमों को माफ कर देगा। और बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि हर चिपक के मकान में मेरा कल मजा करके रहेगा। अगर कोई इज्जत के साथ में कबूल करे तो इज्जत के साथ, जिल्लत के साथ में कबूल करे तो जिल्लत के साथ कबूल करना पड़ेगा, लेकिन कबूल करना पड़ेगा। उम्मत की माएं बहनें अपने दिलों के ऊपर हाथ रख करके बताए, कयामत का मंजर होगा, मेरे और आपके आका का सामना होगा। उधर हजरत बिलाल खड़े हुए होंगे, उधर उम्मे आयशा खड़ी हुई होगी, उधर उम्मे उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा खड़े होगी, उधर सैयद शुहदा हजरत हमजा खड़े होंगे, उमर इब्न खत्ताब खड़े होंगे, वो छोटे छोटे मुआद और मुआविज खड़े हुए होंगे और कयामत में मुझसे और आपसे सवाल करेंगे कि उस जमाने में जिस जमाने में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नतों के जनाजे निकाले जा रहे थे, तरीकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस वक्त तुमने क्या मेहनत देखी, उस वक्त तुमने क्या काम करके आए हैं। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त उस घड़ी को याद करते हुए हदीस कहती है कि अगर हम ये कहेंगे कि उस जमाने में जिस जमाने में कोई सुन्नतों को सुनने के लिए तैयार नहीं था, नबी के तरीकों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम डरते हुए और नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, सहाबा की मोहब्बत में हमने अपने घरों को छोड़ करके 3 दिन हैदराबाद को छोड़ करके शादनगर पहुंचे थे। और रब्बे काबा की कसम, तुम्हारा ये कहना होगा, वहां सारे फरिश्ते झूम उठे होंगे और नबी कहेंगे मेरा रब भी कहेगा कि तुम्हारा ये निकलना मेरे और मेरे नबी की मोहब्बत में था। आज तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा, ऐसा इनाम दूंगा कि कभी तुम्हें इनाम न मिला होगा। आज तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा। उम्मत की माएं बहनें ये 3 दिन का निकालना और ये 10 दिन और ये छिलने और ये 10 दिन चिल्ले और 2 महीने और इसी तरह हमारे हजरात के जो वक्त लगते हैं, इन तमाम के निकालने का मकसद हमारा घर को छुड़ाना नहीं है, काम काज को छुड़ाना नहीं है, हमारा मकसद बीवी बच्चों को छुड़ाना नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आपने 40 साल दुनिया में जिए, 60 साल दुनिया में जिए, जितने भी साल दुनिया में जी रहे हो, 15 साल तक के तो कोई मसला ही नहीं है, 15 साल तक तो कोई मसला ही नहीं है। तो थोड़ा वक्त को पहुंच गए, थोड़ा बहुत वक्त तुम अल्लाह को अल्लाह के लिए अगर निकाल लोगे, थोड़ा बहुत वक्त मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत में निकालोगे, जैसे कि सारा का सारा वक्त नबी ने सुन्नत को दे दिया था, सहाबा ने सुन्नत के खातिर कुर्बान कर दिया था। उन्होंने बीवियों को न देखा, उन्होंने बच्चों को न देखा, उन्होंने अपने माओ बापों को न देखा, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा की जात को न देखा। सिर्फ उनके सामने एक ही मकसद था, वो था मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम। उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा की 1 लाख नमाज के सवाब को छोड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा की 50,000 नमाज के सवाब को छोड़ा और दुनिया के कोनों कोनों में जाकर के बस गए हैं। किताबें बताती हैं कि 10,000 सहाबा फिर ऐसे हैं जिनके कब्र मक्का मदीना में मौजूद है। अक्सर सहाबा दुनिया के कोनों कोनों में बसे हुए हैं, उनके बसने और उनका जाना
یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، جس کی بنیاد پر آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جانوں کے ماننے کی تشکیل نہیں کی جاتی ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے، 2 مہینے میں 3 مہینے میں 3 دن، اور عشرے کے لیے نکلے جن کے 3 دن لگے ہیں، عشرے کی جماعت میں نکلے جن کا عشرہ لگ گیا ہے، چلے کی ترتیب بنائے جن کا چلہ لگ گیا، 2 مہینے میں نکلے، اللہ کی قسم آپ اللہ کے راستے میں نکلو گے، ہاں وہ بدلے اللہ کی دیکھی جائے گی اور وہ مددیں دیکھیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی جب آپ 3 دن اور عشرہ اور چلہ اور 2 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ہمارے نکلنے کا مقصد صرف یہی ہے، نکلنے کا مقصد صرف یہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا احیاء جميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نکالنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں آ جائے جن تمام چیزوں کو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے، لوگ ان کے طریقے کے اوپر 100% آ جائے، لوگ ان کی سنتوں کو 100% زندہ کرنے والے بن جائے، اور لوگوں کی زندگی میں نماز 100% زندہ ہو جائے، لوگوں کی زندگی میں اخلاق پیدا ہو جائے، لوگوں کی زندگی میں معاملات لین دین سنتیں کے طریقے کے اوپر ہو جائے، اور لوگوں کا سنا، لوگوں کا اٹھنا اور بیٹھنا اور تمام امت مسلمہ کا چلنا اور پھرنا اور کھانا اور پھرنا اور بات چیت کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے۔ اسی کے مطابق ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی کی غرض کی بنیاد پر حیدرآباد سے آپ کی یہاں جماعت آئی ہے، لہذا آپ کا آنا بھی مبارک ہے، اور یہاں جو لوگ آئے ہیں باتوں کو سننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی وہ بھی مبارکبادی ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش پر بیٹھے ہوئے اور رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو مجمع جڑا ہے، یہ 10 20 15 لوگوں کا مجمع جو جڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اپنے ٹھنڈے پانی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، کاروبار اور کام کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہ یہاں کس غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے رب اے رب اے رب، یہ تو آپ کی محبت اور آپ کے نبی کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہاں آپ غور سے سنو، میرا رب کہتا ہے فرشتوں ان تمام میری بندیوں سے کہہ دو، یہ جو تمام بندے اور بندیاں آئے ہوئے ہیں ان تمام سے کہہ دو کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ مجھے آپ کو 100% یقین نصیب فرماوے۔